सो वॉइस वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, क्लियर है? क्लियर क्लियर। हाँ हाँ हाँ। Okay. So as of now, we have seen the we normally seen the single EC2 instance, means server we have created, okay, and we have hosted the websites basically. So today we will see the load balancer concept basically. So we will first understand what is the load balancer, how it works, and then how to set up and how we can troubleshoot in the real time manner, okay. So where we can find this load balancer basically, when you search the EC2 service in the search bar here, just type EC2, okay, then go to EC2 service, just scroll down little bit, either you can go with here the load balancer, okay, just simply click on that, otherwise just scroll down and then you will see the options load balancing, okay. Here you will get the load balancer and target group, okay. So for first we will understand what is the load balancer, okay. So basically in the earlier session we have seen we just deploy our website using single server, okay. If suppose in the real time cases in the organization you have set up this single server, okay, and you are running the website, suppose anyone like www.something.com, okay, and something goes wrong with your server, might be service down or any file system corrupted due to the the human error, like developer executed the wrong script or something, okay. There might be multiple reason, sometimes disk space getting full due to the heavy logs, okay, or might be any other reasons. In that situation your website will be completely down, okay. So in the real time scenario, like in the organization, to avoid this kind of issues, there is a concept like load balancer, okay. Load balancer, there are four types of load balancer actually we will see. So how load balancer works basically, let's say we have a two server, okay, one and two. On the top of these two servers we configured one load balancer, actually it's managed by AWS, okay. We will not manage, we will just create it, but it's backend managed by the AWS. So we just create it, and how the load balancer works basically is, let's say there is a website like www.example.com, okay, and the user try to hit this website, this request will route to first, okay, the load balancer. Sorry. Then load balancer will decide where to send the traffic, okay. Then load balancer works by method like round robin method. What is the round robin method basically, okay. Round robin method is basically one request will send to one server, okay. If same user send again the second request, then that request will go to second server, okay. It will not directly route to one server only, okay. So load balancer will manage this by using round robin method, okay. It will send the request, one request to one server, then another request to second server, okay. So this way load balancer will work, okay. If suppose tomorrow everything something goes wrong with the single server, okay, then in that situation your website will not down, because if suppose the user hit the request like the user hit the website www.example.com, okay, then load balancer will check first the healthy state server, okay. He will check first the this server. If he get the error like something goes wrong with this server, then he will not send the request to this crash server, okay. He will send request to your healthy server where the services are running properly. So as a end user we will not face any major downtime issues due to this load balancing feature, okay. So we will see in the practical, so don't worry. So real time this case is using whenever we configure for the any project, okay. So there is always a best practice to use load balancer, because and one more thing, as I earlier explained, first we can choose the region, right. So region is basically country or particular locations. So inside that there are multiple availability zones. Availability zones means the data center, okay, it can be one or multiple, more than that one, okay. So in the when we design the architecture in the for the project, okay,
So we should not keep this both server in same availability zones. Okay, it should be in different availability zones. This server should be in different availability zones, and this server should be in different availability zones. Why? Because if suppose let's say both server are in availability zones 1, let's say, okay, and it's suppose tomorrow suppose war happen, or any natural calamities, no, earthquake happen, or any terror attacks happens on the this region. So as we know, both server are in availability zone 1. So in that situation your both server will crash, okay, and the impact is your website will down, okay, ultimately you will lose your business. So to avoid this kind of base situations, the best practice is you should keep both server in different availability zones. Okay, how we can keep in different availability zone, we will set up that today. Okay, so any doubt as of now how the load balancer works? No, sir. इज सिंपल राइट. जब एक यूजर रिक्वेस्ट सेंड करता है ना, तो वो रिक्वेस्ट पहले भेजेगा. सपोज लेट्स से वो ट्राई करेगा सर्वर 1 पे भेजने का. देन अगर सेम यूजर रिक्वेस्ट करता है अगेन, रिक्वेस्ट करता है मतलब सपोज मैं अभी ये वेबसाइट हिट कर रहा हूँ, लेट्स से ये मेरा एक रिक्वेस्ट है. ओके, तो ये रिक्वेस्ट जाएगा पहले ये सर्वर पे, लेट्स से सर्वर 1 पे. देन अगर मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो लोड बैलेंसर विल राउट टू अनदर सर्वर. ओके, वो सेकंड सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा. राउंड रॉबिन का मेथड ही वो है, लॉजिक जो है ना, वो सेम रिक्वेस्ट, दो रिक्वेस्ट एक ही सर्वर पे बार बार नहीं भेजता. एक रिक्वेस्ट इधर भेजेगा, दूसरा रिक्वेस्ट इधर भेजेगा. ओके, उसमें एडिशनल फीचर एक है, स्टिकी बिट सेशन बोलते हैं उसको, जो लोड बैलेंसर में है. वी कैन यूज दैट फॉर सपोज वी हैव अ रिक्वायरमेंट. इट्स अ वेरी रेयर रिक्वायरमेंट इन द रियल टाइम केसेस कि suppose we want the user will hit the user request will route to only this server, not to this one. Okay, so in that situation there is a feature like sticky bit session. You might heard about this sticky bit session. So if you not heard, don't worry. So it's basically what will happen in the sticky bit session. Suppose let's say we set up this sticky bit session for 5 minutes. Okay, so within 5 minutes if this user hit 4 5 requests, okay, within 5 minutes, then all 4 5 requests will route to this server. Okay, not the second server, because we have enabled the sticky bit session. Okay, the word, the meaning of the sticky, it's like stick for the particular time period when we have set up, like, let's say we have set up for 5 minutes. Okay, sticky bit session. So during that period of time, that request will route to only that server. Okay, single server basically. That is the additional feature basically. If you get such a requirement, then only you need to enable it. Okay, otherwise by default it's disabled. So now we will set up two server basically. Let's say we will set up one server in az1. Okay, and another server we will set up in az2. Okay, so let's see, first we will set up that, then we can run the create the load balancer. Okay, we can simply go to this server uh, instance running. Okay, then we can simply launch. Now what we will do, we will not launch two server one by one. Okay, so what option we will need to perform if we need to launch two servers? Can you please tell me? Now I want to suppose we need to create the two servers. Load balancer, sir. नो नो, अभी हमें दो सर्वर क्रिएट करना है. मैंने हम्म. फर्स्ट सेशन में बताया था, अजीत को याद रहेगा शायद. अभी अपने को 2:2. हाँ, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंस्टेंस है ना, यहाँ पे Okay, okay, yes, sir. Got it. हम इसको यहाँ पे दो कर देंगे. ठीक है, क्योंकि हमें सेम सेटअप का सर्वर चाहिए, तो यहाँ पे हम दो दो नंबर कर देंगे यहाँ पे, ताकि वो दो सर्वर क्रिएट कर ले. अगर हम वन बाय वन करेंगे तो उतना टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट. टेस्ट वेब सर्वर, मैं इसको नाम दे देता हूँ टेस्ट वेब सर्वर. देन यहाँ पे मैंने दो कर लिया है. ओके, OS we can go with the Amazon Linux. We will keep the by default OS AMI. Okay, definitely we will go with the free tier eligible. Then key pair we don't require, but still I can
select to this one, EC2 test. Key pair concept is clear, right? Why we need key pair? Yes. Okay, good. Just it is just for the credentials to access the Linux server by using putty. Okay. Then we will select our VPC here. VPC part is very important, so we will cover in the upcoming sessions, because it's in the AWS cloud. Basically, it's very important to have understanding on the VPC networking part basically. So let's now we have selected our custom VPC. Okay. Then in the subnet, you will see the two subnets here, right? Subnet A and subnet B. Okay. So as I said here, one server should be in availability zone 1, and then another one should be like B. Okay, A or B. So here we can define. So I need to first make it 1 here. Okay, because it will not work, because we need to create in the different subnet zone, otherwise it will create both server in single subnet. So here, let's say I'm just selecting subnet 1. Okay, and then keep all the settings default. Just select the security group. The main setting is here. Okay, subnet for the subnet level. If you select, suppose now we are creating the server in subnet A, and second server we will create in subnet B. Okay, this is just a for the failover purpose. If suppose something goes wrong with the subnet A, means the availability zones, you can see here the code basically AP South 1A. Okay, so this server will create in AP matlab availability zones 1. Okay, then rest of the settings are same, like security group and then storage. Okay, in the advanced option we will install this Nginx server by using script. Okay, you remember, right? User data script. Yes. Alex, you clear about this or you have a doubt? Yes, sir. Okay, it's basically to avoid the manual process after launching the EC2 instance. We can just simply mention here the script. Okay, so it will automatically install during the launch of EC2 instance. Okay, so we simply just review the configuration and simply launch it. Okay, so it will create now. Okay, just forget about this server. This is for the another setup. Okay, it will create now. We will create one more server. Okay, test web server 2, same OS, same configuration, then key pair. Okay, we will change the VPC here, and now we need to select different availability zones. Okay, earlier we have selected AP South 1A, so now we will select different one. You can see here AP South 1B. Okay, so this will create in different availability zones. Okay, data center basically. Then we will select the security group. What is the security group? It's just a policy to apply for your server. Yeah, basically the port management, which port we need to open, like that, right? And simply Yes. launch it. कल के बैच के लिए थोड़ा सा रिवीजन कर लो अभी तक जो EC2 का हुआ है ना, क्योंकि कल एक 10 क्वेश्चंस का एक इनिशियल पे हम थोड़ा सा टेस्ट ले लेंगे उस पर Yes, sir. एक Yes, one more thing. Can we just see PC before moving ahead?
Last time we have discussed about it, and you told that we will see it in later session. Which one? VPC. VPC we will cover in separate because it's very important now. So there are multiple options. Okay. It's required Okay. basically Saturday and Sunday, and that is very Okay. important in the cloud engineer. There are multiple options like VPC, subnetting, route tables, internet gateway. Okay, then security group and the NACL layer. There are lots of options, and the VPC peering as well. Let's say we have a two AWS account and we want to make a connectivity private. We don't want to open the public connections. So there is a feature like VPC peering connection. So there are lots of things actually. So probably next week or something we will cover it. Okay. Okay. Yeah. So for now we will just cover the EC2 part only. There might be a 10 questions, and one software you need to download. I will send the link after the session. Okay. It's basically Kahoot, the app. It's interesting, the quiz app basically. We will try. So both server are in running state now, but the system check is going on. Okay, just I will rename the server 1 and 2. Okay, for the better identification. So now we will verify. You can see here availability zones. First server is in availability zone A, and the second one is in B. Okay. So now we will verify the website we have installed, Apache server, Nginx server basically, it's working fine or not. Second server. Okay, just remember this IP address. Okay, the server, वैसे मैंने नाम तो चेंज किया है यहाँ पे, इसका चेंज करना रह गया तो चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट। सिंपली हमें पुट्टी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी हम कंसोल से लॉगिन कर सकते हैं, उसका वैल्यू चेंज कर देंगे ताकि पता चले कि सर्वर 1 कौन सा है, 2 कौन सा है। वो जो हमने यूज़र डेटा में स्क्रिप्ट दी थी ना, वहाँ पे रीनेम नहीं किया, इसलिए वो 1 ही आ गया दोनों का। इंजीनियर लिनक्स का कुछ पढ़ा है क्या आपने या नहीं? सर Yes. नहीं पढ़ा Normal मैंने। commands. हाँ, ज़्यादा मास्टर भी होने की ज़रूरत नहीं उसमें, बट थोड़ा थोड़ा जो कमांड्स कैसे प्रॉम्प्ट यूज़ करना है क्या नहीं, फॉर द वीआईएम एडिटर, फिर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाने का है तो फिर सीडी कमांड कैसे यूज़ करने का, वैसा। इसको मैं कर देता हूँ वेब सर्वर 2। ओके, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, ये 2 हो गया। ओके, सो नाउ वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस इज द सर्वर 1 एंड दिस इज अ सर्वर 2। ओके, so now we will set up the load balancer. For that we can just simply scroll down little bit. Okay, open the load balancer in separate tab. अच्छा इधर ओपन हो गया, ठीक है। So now we will to create the load balancer, there is option simply the create load balancer. Okay, just click on that. There are 4 type of load balancer basically: application load balancer, network load balancer, gateway load balancer, and previous generation which might be depreciated. Now the enterprise organization will not use this because it has very less feature. Okay, as compared to these 3 1। अभी मोस्ट ऑफ द केसेस रियल टाइम में एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ही यूज होता है इन द प्रैक्टिकल सिनेरियो। बाकी डिपेंड करता है तुम्हारा नेट डिपेंडेंस, मतलब रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, network load balancer and gateway load balancer. Okay, if suppose any project has very large amount of traffic and the need high high performance, you can see the description here. Choose a network load balancer when you need a ultra high performance. Okay, like any e-commerce website or any data science kind of the ISRO kind of websites, they need lots of traffic, right, need to serve. So in that situation we can choose the network load balancer if your requirement is like need high performance. Okay,
Gateway load balancer is basically if suppose you have any on-premises data center or any third-party applications and you want to use load balancer inside the AWS. So in that situation you can use gateway load balancer. So for now इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर. ओके, सो ये चारों का याद रखना. उसमें डिस्क्रिप्शन भी पूछा जाता है कि व्हाई वी नीड टू यूज एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एंड नेटवर्क लोड बैलेंसर एंड गेटवे लोड बैलेंसर. यहाँ पे यू विल सी द लेस डिस्क्रिप्शन बट देयर इज अ सेपरेट पेज. एप्लीकेशन लोड बैलेंसर. ओके, you can see here application load balancer, gateway load balancer, network load balancer. These are the very common interview questions in the real time. They might interview panel might ask how many types of load balancer. So you can just study on this application load balancer, gateway load balancer and network load balancer and the earlier version classic load balancer. Okay, so probably there is a maximum chance to ask question on the application load balancer. Okay, because real time में यही ज़्यादा यूज़ होता है application load balancer में, because it has a very good amount of features. Basically if you have any websites, let's say this website is running on /index.html. okay, so suppose we have another application which is running on, let's say, home.php. okay, so this kind of path based forwarding you can do in the application load balancer. So if you can just study on this page, so you will see the IPv4 and IPv6 supported, HTTP and HTTPS protocol supported, like for the secure websites HTTPS we can import our or integrate our SSL certificate on the load balancer level. okay, then in the features you can see here content based routing, health checks, sticky sessions. I just explain about the sticky session to bind the session for the particular servers. And the target groups we can use load balancer for EC2 instance. okay, and the auto scaling lambda functions we can use as a target group, that is for the the containerization, basically Kubernetes service and container service. okay, we will see here. So now we will back to this application load balancer. If you want to do more study on that, then you also find the link, like what is application load balancer. You might read about in the college time or something, the layer, basically the data layer, application layer, presentation layer, session layer. ये हमें कॉलेज में है ना. Yes. यस, तो इसी लेयर पे ये वर्क करता है लोड बैलेंसर. ठीक है, अभी एप्लीकेशन इसका जो लोड बैलेंसर का जो लेयर है एप्लीकेशन का, ये लेयर 7 पे काम करता है ये. ओके, एप्लीकेशन लेयर्स जो है HTTP और HTTPS वगैरह पे इस पे काम करता है. प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली, इसका डिटेल भी मिलेगा. ये वेबसाइट थोड़ा सा ये लग रहा है मुझे. जो OSI लेयर्स, ये हर किसी को रहता है सिलेबस में. आप BCA करो या BCS करो, इंजीनियरिंग भी रहता है शायद, क्योंकि कॉमन है ना. ये वही ग्राफ है जो मैंने एक्सप्लेन किया था. क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया तो एक रिक्वेस्ट एक सर्वर पे जाएगा, देन लोड बैलेंसर विल राउट रिक्वेस्ट टू अनदर सर्वर विद द राउंड रॉबिन मेथड. ओके, ये OSI लेवर से लेयर्स, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर. जो अर्लियर वर्जन था कौन सा, ये वाला क्लासिक लोड बैलेंसर है, ये वर्क करता था TCP पे, नेटवर्क लेयर जो होता है, यूज TCP पैकेट्स. ओके, अभी जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज लेयर 7 एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली. ओके, इसका डॉक्यूमेंट बहुत सारा है, मैं एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको भेज देता हूँ.
वो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए वो सब काम में आता है नॉर्मली. यू कैन फॉर नाउ यू कैन जस्ट learn about the how to set up. Okay, just remember these four things like application load balancer, network load balancer, gateway and classic load balancer. Classic is earlier version. So simply click on create load balancer. Okay, here, and you can just give the name like load balancer test web server. Okay, then there is a two options, internet facing and internal facing. Okay, let's say in the real time cases we have a requirement like you are deploying any websites. Okay, and that website need to open for the public facing, you know, to every the person who are living across the world, he should able to access like we normally access the websites, you know, Flipkart or Amazon something. Okay, because they are hosted on public network, because everyone need to use. So in that situation we can select this option, internet facing. Okay, and let's say you have a requirement, you don't want to open this website to public facing. Okay, so in that situation you can use internal one. This will work only private network, I mean the in the AWS network basically. Okay, it will not work for the outside. IP address type you can just keep by default IPv4. Okay, there is a dual stack option as well. Dual stack is basically for the IPv6 as well. Okay, so यहाँ पे लिसनर में प्रोटोकॉल क्या होता है, ये जब इसका एक URL जनरेट होके आएगा ना, लोड बैलेंसर का एक एंड पॉइंट जनरेट होता है, दैट इज जस्ट DNS एंड पॉइंट बेसिकली. that DNS endpoint will work by default with the HTTP port. Now we can also open the another protocol like HTTPS. Okay, which is the port 443 for the, if suppose we need to integrate the SSL certificate, in that situation we need to select this one, HTTPS. Okay, but ideal practice you should use always HTTPS. Okay, for the better encryption. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिक्योर दिखा रहा है क्या, यहाँ पे नहीं है. It's not secure because the SSL certificate is not integrated here to for the encryption. So we will attach the SSL certificate we have integrated imported already. Then just scroll down little bit. Availability zone, just select the VPC, as we have a ND VPC is a custom VPC. Okay, by default we will not use, and you need to select the both zones. Okay, availability zones 1 and second one. Okay, now just rest of the things are you can keep default one. Just click on security settings. As I said, as we have select the HTTPS port, right? So now we need to import the certificate. So I will show you one separate service, ACM service, basically Amazon Certificate Manager. Okay, यहाँ पे क्या करते हैं, अपने सर्टिफिकेट इंटीग्रेशन वगैरह सुना होगा ना कहीं पे नेटवर्क में, आप जहाँ पे काम जॉब करते हो. आवाज आ रही है क्या? Yes sir, आ रहा है. Okay, so inside the AWS there is a one service like AWS Certificate Manager. Okay, where we can use free certificate from the AWS, but the condition is this certificate we will only use in the inside the AWS. कुछ सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं जो हमें पेड परचेस करना होता है, लाइक SSL एक शॉपर वेबसाइट है, हम यहाँ से थर्ड पार्टी SSL सर्टिफिकेट परचेस कर सकते हैं. थर्ड पार्टी इन द सेंस देयर आर सम चार्जेस लाइक 2000 3000 समथिंग पर ईयर. ओके, सो वो हम परचेस कर सकते हैं थर्ड पार्टी से, अगर हमें वो सर्वर सर्टिफिकेट हमारे सर्वर पे इंटीग्रेट करना है डायरेक्टली. सर्वर पे मतलब ये जो हमारा लिनक्स का सर्वर है ना, वहाँ पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं सर्टिफिकेट टू सिक्योर द वेबसाइट्स. ओके, बट AWS क्या करता है कि उन हर एक डोमेन के साथ वो एक सर्टिफिकेट फ्री देता है. आई हैव 2-3 डोमेन, सो आई हैव जस्ट परचेस इट. ओके, वो चार्जेबल नहीं रहता है, फ्री रहता है. बट ये कंडीशन यही है कि आप AWS के अंदर ही यूज़ कर सकते हो ये सर्टिफिकेट. बाहर अगर आप किसी और सर्वर पे डालोगे तो वो वर्क नहीं करता. ओके, सो ये सर्टिफिकेट मैनेजर सर्विस है जहाँ से हम सिंपली इंपोर्ट कर सकते हैं. इंपोर्ट करने के लिए क्या है, सिंपली यहाँ से रिक्वेस्ट करना है आपको.
request public certificate. Okay, then just click on next, and you can mention your domain name here like star. Let's say I have one more domain, I can just import it. Star dot domain name देना है यहाँ पे book my project.net. okay, I have this domain. okay, star dot क्यों देना है, I will show you one more thing. कोई वेबसाइट है क्या यहाँ पे अभी? लेट्स से bhaskar.com है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सर्टिफिकेट देखते हैं इसका, सिंपल ट्रिक है सर्टिफिकेट चेक करने का। यहाँ पे हम लॉक बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आता है कनेक्शन इज सिक्योर पे क्लिक करना है, सर्टिफिकेट इज वैलिड दिखाएगा आपको। उस पर अगर क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे आप यू कैन जस्ट फाइंड आउट स्टार डॉट, दे आर यूजिंग स्टार डॉट डोमेन नेम। ओके, द मीनिंग इज suppose if you add any subdomain here, okay, before the bhaskar.com, let's say blog.bhaskar.com, okay, this certificate will work. okay, as of now there is no pointing on the bhaskar.com, okay, for the subdomain, but it will work SSL certificate for the subdomain as well. You can add any subdomain or multiple subdomains here, it will work. okay, so we will see for our projects. So this way, and then you can just simply select the DNS validation method, keep default one, and then just simply request it. okay, so ये request generate हो जाएगा। यहाँ पे हमें किसी वेंडर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ से हम परचेस कर सकते हैं सर्टिफिकेट, SSL सर्टिफिकेट। ओके, नाउ यू कैन सी इट्स शोइंग पेंडिंग वैलिडेशन। सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वी हैव सेलेक्टेड द DNS वैलिडेशन, राइट? सो जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दैट, and here is the domain request. You can see the pending status. Simply create records in Route 53. okay, Route 53 क्या है बेसिकली, इट्स अ DNS सर्विस जहाँ पे हम अपना डोमेन मैप कर सकते हैं। अभी जो ये मेरा डोमेन वर्क हो रहा है, कौन सा, बुक माई प्रोजेक्ट्स, ओके, ये वाला, यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैंने सर्टिफिकेट परचेज किया है क्लाउड से ही। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिंपल, मैंने स्टार नहीं लगाया, बट अगर यहाँ पे अगर इफ़ यू गो टू द डिटेल्स, यहाँ पे सर्टिफिकेट सिग्नेचर एल्गोरिदम है, और एक नेम करके आता है यहाँ पे, अल्टरनेटिव नेम्स। ओके, सर्टिफिकेट अल्टरनेटिव नेम्स, यू कैन सी हियर स्टार डॉट बुक माई प्रोजेक्ट डॉट नेट। ओके, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको, लेट्स से यू हैव अ मल्टीपल सबनेट्स, blog dot example dot com, docs dot example dot com और sales dot example dot com। ओके, तो इसके लिए आपको अलग अलग सर्टिफिकेट परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने SSL सर्टिफिकेट इस तरह से अगर परचेस किया, स्टार डॉट आपका डोमेन नेम, तो वो अनलिमिटेड सब डोमेन्स वहाँ पे सपोर्ट करेगा। ओके, आपको अलग सर्टिफिकेट परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कहाँ आ गए। हाँ, पेंडिंग स्टेट में है ना, तो सिंपली वी नीड टू क्रिएट द Route 53 here. okay, entry basically, just click on that and simply create records. एक विदिन 1 मिनट वो सिंक हो जाना चाहिए, ऐसा स्टेटस आना चाहिए इशूड करके। अभी यहाँ पे Route 53 DNS सर्विस है बेसिकली, जहाँ पे आप जैसे अपने बिग रॉक, गो डैडी वगैरह सुना है ना, जहाँ पे लोग डोमेन रजिस्टर परचेस करते हैं एंड होस्टिंग करते हैं उनके इस Yes, पे, yes, है ना। yes, yes. सो उसी तरह का AWS का एक खुद का रजिस्ट्री है, मतलब डोमेन रजिस्ट्रेशन यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा वो रजिस्टर डोमेन एंड रिक्वेस्ट का। ओके, मैंने यहाँ से ये 3 डोमेन परचेस किया है, तो मैं अभी जो ये इस वाला है इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ रियल टाइम पे। ओके, यहाँ पे मैंने इसका एंट्री करके रखा है सर्वर का, जो एक सर्वर रनिंग दिखाया था ना स्टार्टिंग में, ये देखो इस पे ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड का यहाँ पे वो एलियास करके रखा है मैंने, ये लोड बैलेंसर का DNS एंड पॉइंट है। तो ये भी देख लेते हैं हम, ठीक है, वो एंट्री है करके ये चल रहा है DNS पॉइंटिंग। जस्ट रिफ्रेश करते हैं, यू कैन सी द सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड। ओके, within 1 minute. So now we will create load balancer here.
सो यहाँ पे आप सर्टिफिकेट दे सकते हो, जस्ट यहाँ पे रिफ्रेश कर दीजिए। हम हमारा दूसरा वाला जो वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो AWS गुरुजी करके है, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट ले लेता हूँ। यू कैन सी अभी जो हमने रिक्वेस्ट किया था वो भी यहाँ पे आ गया है, बुक माई प्रोजेक्ट .NET वाला, ओके, स्टार डॉट करके। तो अभी हम AWS गुरुजी .NET सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, यहाँ से सिक्योरिटी पॉलिसी यहाँ पे ना ये चलेगा, आप ये भी लेंगे तो, बट ये वर्जन वो सजेस्ट करते हैं AWS वाले, TLS 1.2 ये सिक्योरिटी मेथड कुछ तो है उनका। देन जस्ट क्लिक ऑन सिक्योरिटी, यहाँ पे यू कैन सेलेक्ट द सिक्योरिटी ग्रुप। EC2 for the EC2 instance, you need to maintain the separate security group, okay. Also we need to manage for the create one for the load balancer. Let's say you might have a doubt like, can we use same security group for the both EC2 instance and load balancer? Yes, definitely you can use for that as well, but as a real time the best practice you should avoid that. You need to create separate security group for the load balancer, okay, because sometimes we need a requirement like we need to open some ports for the EC2 instance but not for the application load balancer. So to avoid this kind of minor issues, we need to create the separate security group, okay. So for now just I am just going with the default one, okay, security group जो हमने EC2 को अटैच किया है। देन क्लिक राउटिंग। सो यहाँ पे टारगेट ग्रुप क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे आई विल शो यू वन थिंग। लेट्स से यहाँ पे ये लेट्स से यूज़र है, ओके, ये यूज़र है, यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है वेबसाइट पे example.com या जो भी रहेगा, ठीक है। ये मेरा रिक्वेस्ट आया कहाँ पे, लोड बैलेंसर पे, ठीक है। अभी लोड बैलेंसर कैसे डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ पे भेजना है, राइट? ये क्वेश्चन आपको आया होगा ना कि अभी लोड बैलेंसर कैसे डिसाइड करेगा कि ये सर्वर पे भेजना है या लैम्बडा फंक्शन पे भेजना है, ओके। जैसे मैंने वो कहाँ पे दिखाया था कि मल्टीपल टारगेट्स वी कैन अटैच, राइट। जब हमें टारगेट ग्रुप बनाते हैं ना तब वो आता है। लेट मी गो बैक। यहाँ पे जो दिखाया था मैंने टारगेट ग्रुप, ओके। सो टिल नाउ इट्स फाइन, राइट, बट यहाँ से जो लोड बैलेंसर है वो उसको डिसाइड करना पड़ता है कि मैं कहाँ पे भेजूँ, ये लैम्बडा फंक्शन पे भेजूँ या EC2 पे भेजूँ या कहीं फारगेट सर्विस पे भेजूँ जो कंटेनराइज सर्विस है, ओके। सो ये यहाँ पे उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें एक टारगेट ग्रुप ऐड करना होता है, ठीक है, कि ये लोड बैलेंसर को दिखाता है कि ये लोड बैलेंसर कोई अगर हम टारगेट ग्रुप अटैच कर दे तो फिर लोड बैलेंसर को ये पता चलता है कि हाँ मुझे ये रिक्वेस्ट आई है तो मुझे ये टारगेट ग्रुप पे भेजना है, ओके। तो उस तरह का ये सेटअप रहता है। तो यहाँ पे हम पहले टारगेट ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं टारगेट ग्रुप टेस्ट सर्वर। यहाँ पे आप लैम्बडा फंक्शन से भी, सपोज आपके पास रियल टाइम केस में अगर आपको लैम्बडा फंक्शंस एज अ टारगेट अटैच करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ओके। बट फॉर नाउ टू अवॉइड द मोर कन्फ्यूजन आई विल जस्ट सिंपली सेलेक्ट द EC2 इंस्टेंस, ओके, टाइप इंस्टेंस, ओके। नाउ सिंपली यहाँ से VPC सेलेक्ट कर लेना है जो हमारा कस्टम VPC रहेगा, ओके। देन सिंपली क्रिएट इट। तो यहाँ पे टारगेट ग्रुप इज बेसिकली रूल सेट है कि लोड बैलेंसर को डायरेक्शन देने के लिए कि लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट कहाँ भेजेगा, यू नो, वहाँ से। जैसे हम कोई ये भेजते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सपोज आपने एक लेटर भेजा किसी एड्रेस पे, तो पोस्टमैन को कैसे पता चलेगा कि वो कौन से जिप जो पोस्टल कोड रहता है ना कहाँ पे भेजना है, वहाँ पे हम लिख बताएंगे तो वो जाएगा ना वहाँ पे। तो उसी तरह का वो टारगेट ग्रुप होता है। तो उस हिसाब से फिर वो लोड बैलेंसर डिसाइड करता है कि कहाँ भेजना है। अभी देखो हमारा ये टारगेट ग्रुप बन गया है यहाँ पे। अभी इस टारगेट ग्रुप में हमें क्या करना है, हमारा जो 2 सर्वर है वो यहाँ पे अटैच करना है, ओके। अटैच करने के लिए सिंपल प्रोसेस है, उस टारगेट ग्रुप को सेलेक्ट कर लेना है। ये चीज़ तो क्लियर है ना कि ये सर्वर वगैरह कहाँ से जाना है हमें, लोड बैलेंसर पे यहाँ पे दिखेगा, ओके, EC2 में। यस सर। हाँ ठीक है। कहीं पे कुछ लग रहा है आपको थोड़ा ओवर हो रहा है तो मुझे जस्ट होल्ड कर दीजिए।
सो यहाँ से टारगेट ग्रुप पे आके जो अपना टारगेट ग्रुप है उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा टारगेट्स करके, ओके। देन यहाँ पे एडिट करके ऑप्शन मिलेगा। नाउ वी हैव 3 सर्वर्स, ओके, बट one server is already running which is for my personal use, okay, we don't want to use that for this load balancer. So real time में आपका जो भी use रहेगा, like you know, we need to add these 2 servers, not this one, okay, because this is another for the another project basically if we consider simply. So ये हमने 2 सर्वर यहाँ पे अटैच करना है उसको, तो उसको सेलेक्ट कर लेना है, ओके। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना पोर्ट पे, अभी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। अभी मैं लिनक्स सर्वर है ना, ये हमारी जो सर्विस रन हो रही है एनजीनिक्स की, ये कौन से पोर्ट पे डिफ़ॉल्ट रन होती है, एनजीनिक्स डिफ़ॉल्ट पोर्ट, ओके। ये डिफ़ॉल्ट रन होती है 80 पोर्ट पे। समटाइम्स क्या होता है, लेके लेट्स से सपोज कोई आपका एप्लीकेशन जेनकिंस सर्वर चल रहा है, नहीं क्या, डिप्लॉयमेंट जो करते हैं हम, जेनकिंस का डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है 8080, ठीक है। ये पोर्ट नंबर हमें याद क्यों रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब आप लोड बैलेंसर सेटअप करते हो ना, तो यहाँ पे सर्वर पे जो पोर्ट रन हो रहा है जिस सर्विस के लिए, वही पोर्ट यहाँ पे देना पड़ता है। जैसे से अभी मैं जेनकिंस सर्वर रन कर रहा हूँ और वो जेनकिंस सर्वर मुझे लोड बैलेंसर में ऐड करना है, तो यहाँ पे अगर मैं 80 कर दूंगा तो वो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि वो सर्वर ही रन नहीं हो रहा ना 80 पोर्ट पे। वो रन कहाँ पे हो रहा है, 8080 पोर्ट पे हो रहा है। तो यहाँ पे जब मैं टारगेट ऐड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 8080 देना पड़ेगा। अभी लेट्स से हमें फाइंड आउट कैसे करना है कि ये कौन से पोर्ट पे चल रहा है, ओके। अगर इफ़ यू अवेयर अबाउट द लिनक्स कमांड, नेट स्टैट करके कमांड है, ओके, जस्ट एग्जीक्यूट करना है TLUPN। यहाँ पे आपको सर्विस के आगे पोर्ट नंबर मिल जाएगा, ये आपको अगर दिख रहा है nginx क्लियरली, जस्ट गो टू द लेफ्ट साइड, यू विल सी 80 पोर्ट हियर, ओके। ये कौन से नेटवर्क के लिए ओपन रहता है उसका रहता है, एंड देन उसके आगे कॉलन के आगे पोर्ट नंबर रहता है, ओके। SSH पोर्ट रन ऑन बाय डिफॉल्ट 20 नंबर, ओके। ये आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके चेंज कर सकते हो, बट ये डिफ़ॉल्ट 80 ही रहता है nginx का, ओके, nginx और अपाचे ऐसा। तो यहाँ पे फिर वो ये ध्यान रखना, ये ऐसे सेलेक्ट कर लिए पोर्ट, देन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन ऐड टू रजिस्टर करके, ओके। फिर यहाँ पे ये रजिस्टर में ऐड हो जाता है, देन यहाँ पे आपको सेव करना है। यू विल सी ऑप्शन हियर स्टेटस इज अनयूज्ड, वाई, बिकॉज अभी हमने लोड बैलेंसर बनाया ही नहीं है और ये टारगेट ग्रुप वहाँ पे यूज़ नहीं किया है, ओके, इसलिए वो अनयूज आ रहा है। तो नाउ वी विल गो बैक टू द लोड बैलेंसर विंडो, ओके। यहाँ से हम नया लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं, सिंपली एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे नाम दे देना है, ओके, लोड बैलेंसर टेस्ट वेब सर्वर, और यहाँ से इंटरनेट फेसिंग सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें यहाँ आउटसाइड AWS के हमें एक्सेस करना है, ओके, बाहर से। और सेम प्रोसेस लिसनर यहाँ पे पोर्ट ऐड करना है जो हमें HTTPS यूज़ करना है, राइट, सर्टिफिकेट वाला। और यहाँ से देन सेलेक्ट द VPC में जो भी अवेलेबिलिटी जोन से मिनिमम टू रिक्वायर्ड, यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन हियर, ओके। जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना घर पे, तो ये थोड़ा सा अभी पढ़ लेना यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया है, तो ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए। और जो यहाँ पे आई बटन है वहाँ पे भी आप माउस लेके जाते हो तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये क्या ये यहाँ पे है, ठीक है। एक हिंट दे देता है वहाँ पे वो ये सर्विस क्या है, जैसे आप वहाँ पे माउस कर्सर लेके जाते हो तो, ठीक है, जस्ट फॉर द एडिशनल नॉलेज। फिर यहाँ से सिंपली क्लिक नेक्स्ट करना है, यहाँ पे अगेन सेलेक्ट द सर्टिफिकेट जो हमने इसका लिया था AWS-Guruji.net वाला, देन पॉलिसी एंड security group, okay, we will go with the default one। अभी यहाँ पे अभी नया टारगेट ग्रुप बनाना है तो हमें यहाँ पे नया सेलेक्ट कर सकते हैं, बट हमने अभी नया एग्जिस्टिंग टारगेट हमने ऑलरेडी बनाया है, तो वी विल सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग टारगेट ग्रुप, ओके। आप यहाँ से भी जा सकते हो न्यू करके, फिर वो नया इसमें लेके जाएगा आपको, जैसे अभी हमने टारगेट ग्रुप बनाया था, राइट, EC2 वगैरह ऐड किया था। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है एग्जिस्टिंग, चूज करके यहाँ पे आ जाएगा जो हमने नाम दिया था ना, TG टेस्ट सर्वर, ओके, टेस्ट टारगेट ग्रुप टेस्ट सर्वर। यहाँ पे जो हमने 80 पोर्ट दिया था वो ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे। देन सिंपली वी कैन
नेक्स्ट टू रजिस्टर टारगेट्स। ओके, यहाँ पे 2 सर्वर आपको दिखेगा जो हमने 2 ऐड किया था 80 पोर्ट पे। जस्ट सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड क्रिएट। ओके, it will not take too much time to create the load balancer। यहाँ पे अभी स्टेट आपको दिखेगा प्रोविजनिंग का, वो एक्टिव होना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। अभी इसको एक्सेस कहाँ से करें, यहाँ पे जस्ट आपको सेलेक्ट करके यहाँ से नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक DNS एंड पॉइंट मिलेगा, DNS नेम करके। ओके, सिंपली यहाँ पे क्लिपबोर्ड है, या इसको कॉपी कर लेना है यहाँ पे डायरेक्ट, ये URL कॉपी हो जाएगा। अभी ये मैं इसको अगर ब्राउज़र में हिट करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। अभी कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि वो क्रिएट ही नहीं हुआ है, प्रोविजन स्टेट में है, वो एक्टिव स्टेट में आना चाहिए। ओके, यहाँ पे अभी हम अगर आईपी से हिट करते हैं, अगर रियल टाइम पे अगर हम आईपी से चलाएंगे तो हर बार हमें आईपी शेयर करना पड़ेगा, राइट, यूज़र से, जो भी वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं। अभी आईपी किसी को याद रहता है क्या? पॉसिबल नहीं है ना कि इतना सारा आईपी याद रखें। अभी ये तो ठीक है, हमारा 2 ही सर्वर है तो इसलिए 2 आईपी है। अभी हम google.com का अगर वेरीफाई करते हैं, अगर गूगल वाले ने वैसा किया होता कि ये मेरा आईपी ले लो और याद रखो वेबसाइट, है ना, वो पॉसिबल ही नहीं था। इनका आप आईपी देख सकते हो, ये अलग अलग डीएनएस सर्वर है। अगर आप लिनक्स में डीएनएस सर्वर पढ़ोगे ना तो ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये जो वेबसाइट वर्क होते हैं ना, ये पॉइंटिंग वगैरह डीएनएस से, ये बेसिकली आईपी टू नेम रिजोल्यूशन का है। अभी यूज़र को आईपी एड्रेस तो याद नहीं रहता, इसलिए वो डीएनएस कंसेप्ट आया उसमें कि डोमेन नेम रिजोल्यूशन। अगर मैं इस नाम को अगर आईपी पॉइंट कर देता हूँ बाय यूजिंग ये डीएनएस सर्विस, तो एज ए यूज़र मुझे आईपी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अभी उनका ये रिकॉर्ड पे पॉइंटिंग है। अब मुझे अगर ये आईपी अगर हिट करता हूँ, मुझे याद ही नहीं रहेगा ना ये google.com का है, चलेगा कि नहीं पता नहीं, ट्राई करते हैं। चल गया देखो, बट मुझे एज ए यूज़र के लिए मुझे आईपी याद नहीं रहेगा ना ये इतना सारा, मुझे जस्ट तो google.com ही याद रहेगा। तो इसलिए डीएनएस राउट पॉइंटिंग करते हैं वहाँ पे, और AWS के अंदर राउट 53 डीएनएस सर्विस है जहाँ पे हम ये डीएनएस पॉइंटिंग कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस एक्टिव आ गया है। अभी हम फिर से अगर इसको कॉपी करके हिट करते हैं ना, ऑलरेडी है यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे क्या आया, वेब सर्वर 2 है ना, यहाँ पे वो चेंज होगा। जो मैंने एक्सप्लेन किया था, राउंड रॉबिन मेथड से 1 पे जाएगा देन 2 पे जाएगा, वो रिक्वेस्ट 1 बाय 1 सेंड करेगा। ओके, अभी हमारी वेबसाइट चल रही है। अभी हम इसको क्या करते हैं, डीएनएस पॉइंटिंग कर देते हैं ताकि हमारा डोमेन नेम, अभी इतना बड़ा यूआरएल तो याद नहीं रहता ना, ठीक है, हिट करने के लिए। तो वही रिजॉल्व करने के लिए डीएनएस सर्विस है। यहाँ पे हम आ गए AWS guruji.net पे, क्रिएट रिकॉर्ड पे हम आते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे वो डी एंड पॉइंट आपको देना पड़ेगा, कौन सा, जो लोड बैलेंसर का बना था ना, ये वाला, ये आपको वहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ से आपको सीनेम ये करके 1 मिनट, ये डिटेल्स टाइमिंग क्या है, बेसिकली ये 60 सेकंड में ये अपडेट हो जाएगा, नहीं क्या, ये जो रिजोल्यूशन होता है ना डोमेन का, वो अपडेट हो जाएगा बेसिकली। वो हमने बैंक में या फिर कहीं तो सुना होगा कि ये आपने कुछ ट्रांजेक्शन किया और वो बोलते हैं ना कि थोड़ा टाइम लगेगा इसको रिफ्लेक्ट होने में, वैसा ही कुछ है डीएनएस, जो उसको डीएनएस प्रोपेगेशन बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, जो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क पे वो सिंक होता है बैकएंड से। ये डोमेन नेम सपोज अभी हम पॉइंट कर रहे हैं ब्लॉग, ओके, ब्लॉग डॉट अभी ये वर्क कैसे करेगा, ब्लॉग डॉट AWS guruji.net। ओके, मैं इसको सीनेम मतलब क्या होता है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, राउट ट्रैफिक टू अनदर डोमेन नेम। ओके, अगर मुझे मेरे पास आईपी एड्रेस मुझे पॉइंट करना है ना, ये सिंगल आईपी एड्रेस पॉइंट करना है, तो यहाँ पे मैं ए रिकॉर्ड यूज़ करता है। ओके, ये वाला ए रिकॉर्ड, अगर आईपी एड्रेस के लिए हमें राउटिंग करनी है तो
ये लिनक्स में भी आता है, डीएनएस जब आप पढ़ोगे ना या फिर एडब्ल्यूएस के अंदर कि ये रिकॉर्ड कौन सा रिकॉर्ड कब यूज़ करना चाहिए, ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। ये बाकी याद रखे ना रखे ज़रूरी नहीं है, बस सिंपली दो ही है। ए रिकॉर्ड कब यूज़ करना है, जब किसी सर्वर पे हमें आईपी के लिए पॉइंट करना है, ठीक है। अब ये मुझे ये आईपी के लिए पॉइंट करना है तो मैं ए रिकॉर्ड यूज़ करूँगा यहाँ पे। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ऊपर वाला, ठीक है। या फिर अभी मैं यहाँ पे मेरा एंड पॉइंट डोमेन नेम है ना, ये अलग कुछ जनरेटेड, तो यहाँ पे मुझे आईपी एड्रेस सपोर्ट नहीं, ए रिकॉर्ड सपोर्ट नहीं करेगा, सी नेम रिकॉर्ड ही यूज़ करना चाहिए, जो कैनोनिकल नेम बोलते हैं उसको। ओके, अभी मैं इसको सिंपली क्रिएट कर देता हूँ। तो अभी हमारा डीएनएस पॉइंटिंग कैसे वर्क होगा, इधर गया, यहाँ पे आपको दिखेगा blog.awsguruji.net। ओके, मैं इसको अभी जस्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हिट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, ये देखो वो इमिडिएटली अपडेट हो गया है। अभी हमें ये डीएनएस का एंड पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। अभी सिंपली हमें ये जो डोमेन नेम है blog.awsguruji.net, ये बस इतने हमें याद रखना है, जो हमारा डीएनएस डोमेन नेम रहेगा बेसिकली। इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ से, तो आप देख सकते हो सर्वर 1 2 पे जा रहा है, ठीक है। और जो मैंने आपको एसएसएल सर्टिफिकेट का बोला था, अगर आप स्टार डॉट लेके ये डोमेन नेम परचेस करते हो तो अभी यहाँ पे देख सकते हो प्रैक्टिकली ब्लॉक डॉट मैंने लिखा है, राइट। तो मैंने ब्लॉक डॉट के लिए तो यहाँ पे सर्टिफिकेट परचेस नहीं किया था। तो इस तरह का वो बेनिफिट रहता है, आप जब एसएसएल सर्टिफिकेट परचेस करोगे ना किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, वाइल्ड कार्ड। ओके, जो हम स्टार डॉट लगाते हैं आगे, दैट इज कॉल्ड वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट। ओके, यहाँ से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, लॉक बटन पे प्रेस करके सर्टिफिकेट इज वैलिड एंड देन वी कैन सी हियर स्टार डॉट एडब्ल्यूएस गुरुजी। ओके, ये सर्टिफिकेट हमने किससे परचेस किया वो भी यहाँ पे डिटेल आता है, हमने अमेजोन से परचेस किया है, कब लिया है और ये एक्सपायर कब होगा। ये जस्ट मैं एडिशनल आपको दिखा रहा हूँ ताकि याद रहे रियल टाइम पे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला है कि अगर सपोज हम एक सर्वर अभी मैनुअली डाउन करते हैं, ठीक है। वो रिक्वेस्ट दोनों पे जाएगा क्या, अभी दोनों पे जा रहा है, राइट। 1 2 1 2 आ रहा है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो नाउ आई विल डाउन वन सर्वर। मतलब रियल टाइम में ऐसे सोचो कि आपका एक सर्वर पे कुछ तो गड़बड़ हो गया है, ठीक है। अभी लेट्स से आई विल शट डाउन वन सर्वर, इसको मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ या फिर इस सर्वर पे लॉगिन करके मैं क्या करता हूँ, इसकी सर्विस स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। सर्विस स्टॉप हो गई मतलब क्या हो गया, वो वर्क नहीं करेगा ना, वो आपका जो ये है सर्विस वहाँ पे जो रन हो रहा है वो चलेगा ही नहीं। इसका कमांड रहेगा systemctl status nginx, यहाँ पे अभी एक्टिव रनिंग दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको अभी स्टॉप कर देता हूँ। ये आपको थोड़ा थोड़ा लिनक्स पढ़ना पड़ेगा साइड बाय साइड, नहीं तो क्या है वो आपके ऊपर से नहीं जाना चाहिए बेसिकली, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। यहाँ से फिर से स्टेटस चेक करते हैं, यहाँ पे अभी देखते आप देख सकते हो एक्टिव इनएक्टिव दिखा रहा है, राइट, क्योंकि मैंने शट डाउन कर दिया। अभी इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या आ गया 502 बैड गेटवे, क्यों, क्योंकि ये जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था इनिशियल पीरियड में, पहले वो ट्रैफिक सेंड करने की कोशिश करेगा जो पहले जहाँ पे वो सेंड करता था एक सर्वर पे, राइट, एक सर्वर पे। बट अभी उसको क्या आ गया, एरर आ गया, तो अभी नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, वो सर्वर पे भेजेगा नहीं क्योंकि वो हेल्थ स्टेट में नहीं है। तो वो क्या करेगा, जहाँ पे जो हेल्थ स्टेट सर्वर है वहाँ पे वो भेजेगा। ये देखो जो हमारा सेकंड सर्वर हेल्दी है, अभी फिर से वो सिंगल जो सर्वर शटडाउन है उस पर भेज रहा है क्या, नहीं भेज रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो अनहेल्दी हो गया है, मतलब डाउन हो गया है। तो हमारी वेबसाइट बंद हुई क्या इस केस में, नहीं हुई। अगर इस जगह पे अगर एक ही सर्वर रहता तो हमारा ये बंद हो जाता लोड बैलेंसर, मतलब लोड बैलेंसर भी वर्क नहीं कर पाता। चलो देखते हैं दूसरा भी सर्वर शट डाउन कर देते हैं। ये कौन सा सर्वर है,
ये फर्स्ट वाला है जो मैंने बंद किया। ओके, अभी लेट से आपका दूसरा भी सर्वर हम बंद कर देते हैं। इसलिए रियल टाइम केस में जब आप कोई भी आर्किटेक्चर डिज़ाइन करो ना, तो लोड बैलेंसर आपका तो होना चाहिए, बट उसमें एक सर्वर नहीं होना चाहिए। ओके, जस्ट मेक श्योर 2 सर्वर होना चाहिए प्रोडक्शन केस में। अगर आपका डेव इन्वायरमेंट है तो चलेगा, एक सिंगल सर्वर के साथ आप चला सकते हो, बट प्रोडक्शन में तो आपका 2 सर्वर एज अ फेलोर के लिए चाहिए ही। क्योंकि अगर आपका एक सर्वर है और वो शट डाउन हो गया तो फिर आपका वेबसाइट बंद हो जाएगा। सिस्टम सीटीएल, सर मोर देन टू भी बना सकते हैं क्या? हाँ वो डिपेंड करता है ना आपका लोड कितना है वेबसाइट पे। ओके। मल्टीपल यू कैन क्रिएट मल्टीपल वेबसाइट्स, जस्ट सॉरी सर्वर, बट वो डिपेंड करता है आपका वर्कलोड कैसा है, ट्रैफिक पैटर्न कैसा है, लाइक यस। उस पर डिपेंड करता है। अब अगर आपका ट्रैफिक पैटर्न जो सिर्फ अगर इवेंट पे आता है, लाइक फ्राइडे को आपका सेल चलता है या फिर कुछ इवेंट आप और होस्ट कर रहे हो तो उसी पे आता है, तो आपको एवरी टाइम आपको मल्टीपल सर्वर रन करने की ज़रूरत नहीं है एज अ बेस्ट नहीं है। प्रैक्टिस। अगर आपका एवरीडे ट्रैफिक आ रहा है लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट और बैंकिंग वेबसाइट हो गया, ट्रैफिक तो इन पे डेली बेसिस पे रहेगा ना, लोग आके ऑर्डर करेंगे या फिर जो भी रहेगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट सेटअप पे आप डिपेंड मॉनिटर करना होता है कि कितना लोड जा रहा है, यूज़ हो रहा है, फिर वो हिसाब से आप सर्वर बढ़ा सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल सर्वर आप इजीली ऐड कर सकते हो। मैं यस। दूसरे साइट पे भी आ गया, उसको भी शट डाउन किया क्या? हाँ कर दिया। यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हो, एक्टिव इनएक्टिव आ रहा है। अच्छा इसको नहीं किया, एक मिनट, हाँ स्टेटस चेक किया था जस्ट, इसको भी स्टॉप करता हूँ। ओके, और इसका स्टेटस चेक करते हैं यहाँ पे एक्टिव, ये भी बंद हो गया। ओके, अभी मैं डोमेन हमारा ये करता हूँ, देखो अभी वो कितना भी आप रिफ्रेश करोगे ना तो वो चलेगा नहीं का, बिकॉज वो दोनों सर्वर जो बैकएंड पे थे लोड बैलेंसर के, दोनों भी शट डाउन हो गए बेसिकली। अभी मैं एक स्टार्ट करता हूँ, 2 वाला स्टार्ट करता हूँ मैं। स्टार्ट कैसे करना है? सर्विस सिस्टम सीटीएल स्टार्ट एनजिनिक्स। ओके, सर्विस का नाम। अभी हम इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, ये देखो सर्वर 2 वाला आ गया वापस। तो इस तरह से आप घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हो, और ये लोड बैलेंस ज़रूरी है, रियल टाइम में आना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे ऑलमोस्ट सभी जगह पे लोड बैलेंसर यूज़ ही होता है, उसके बिना काम ही नहीं चलता फॉर द फेलियर पर्पज़। तो ये पार्ट तो आपको आना ही चाहिए। तो इसका जो भी दिखा है ना, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, तो एक बार प्रैक्टिकल कर लेना इसका। अब ये मेरा जो हमने लोड बैलेंसर बनाया था टेस्ट वाला, इसके लिसनर पोर्ट में आप जाके देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे क्या हो रहा है, HTTPS से रन हो रहा है ना सीधा, यहाँ पे आप आगे देख सकते हो, दिख रहा है क्या क्लियर? थोड़ा ग्रे में है। यस दिख रहा है। मैं उसको करता हूँ HTTP पे, HTTPS नहीं लगाता हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आ रहा है, नॉट सिक्योर आ रहा है ना। यस यस। हाँ, तो अभी रियल टाइम में इसको हम क्या कर सकते हैं, मैं वो दिखा देता हूँ, क्योंकि क्लाइंट को वैसा एरर नहीं आना चाहिए ना। तो यहाँ पे लोड बैलेंसर में एक सेटिंग रहता है। अभी यहाँ पे जो हमने 2 लिसनर ऐड किया था, 80 और 443 पोर्ट। ओके, इसको आपको 80 को वाले को सेलेक्ट कर लेना है, एडिट में आना है। ओके, इसका एक रूल्स रहता है यहाँ पे, सेट ऑफ रूल्स। यहाँ पे अभी सिंपली ये फॉरवर्ड कर रहा है 80 पोर्ट को ही। ओके, हम इसको डिलीट करते हैं, यहाँ से नया रूल ऐड करते हैं, रिडायरेक्ट टू HTTPS पे। ओके, एंड सिंपली रिडायरेक्ट करते हैं हम इसको HTTPS पे। यहाँ पे पोर्ट देना है उसका 443। ये पोर्ट नंबर याद कर लो, सिंपल है कुछ नहीं। आप अगर आप सर्च करते हो लिस्ट ऑफ पोर्ट्स, है ना, जो मेन में है वही आपको याद रखना है, SSH का, DNS का, RDP का। ये इस पे तो दुनियादारी बहुत सारा पड़ा है। आप IMP पोर्ट नंबर, हाँ ठीक है,
50 कॉमन पोर्ट्स, यहाँ पे पोर्ट नंबर दिया है ना क्या। ये बाकी चीज़ों का याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बाकी बहुत मगजमारी है। जस्ट जो मेन है ना, FTP का हो गया है ना, FTP SSH जो 22 पोर्ट नंबर है। SMTP मतलब अपना जो मेल सर्वर है ना, जीमेल या कोई भी मेल सर्वर जो चलता है, एक्सचेंज होता है, वो 25 पोर्ट पे रन होता है, जो हमारे पास मेल आते हैं जाते हैं। DNS का 53 पे होता है। HTTP का 80 जो हमने अभी देखा, ठीक है। उसके बाद POP3 भी मेल का है, ये भी याद रखो तो चलेगा। इसके बाद हमारा हो गया HTTPS जो हमने अभी देखा नहीं क्या, सिक्योर वाला 443। उसके बाद हो गया ये भी मेल सर्वर का है। हाँ ये 2-4 ही है मेन, बाकी तो बहुत सारे हैं इसमें। बाकी डेटाबेस का है ना क्या, MySQL का 3306 हो गया, पोस्टग्रेस का 5432, ऐसा। मैं अपने इस पे भेज देता हूँ, किधर गया बैच का ग्रुप। तो यहाँ पे HTTPS का पोर्ट मैंने 443 दे दिया, इसको सिंपली सेव करना है। ओके, पहले रूल क्या था, अगर HTTP पे रिक्वेस्ट आता है तो वो सीधा HTTP पे ही भेजता था, बट अभी हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको अगर रिक्वेस्ट आता है HTTP पे 80 पोर्ट पे, उसको रिडायरेक्ट करो HTTPS पे। सो यू कैन सी हियर, ओके 443, यह लॉजिक ऑटोमेटिक वहाँ पे बैठ जाता है जब जैसे हमने ग्राफिकली ऐड किया। ओके, तो अभी हम उसको फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखो मैंने जस्ट रिफ्रेश किया तो वो क्या हुआ, HTTP वाला HTTPS पे रिडायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप वो रियल टाइम में कर सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर फिर से मैं इसको अलग इसमें खोल ओपन करता हूँ, HTTP, ओके, ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही है, SSL वाले पे। कोई डाउट है क्या? आप घर पे बना पाओगे ना लोड बैलेंसर और सर्वर ऐड वगैरह करना? यस सर। ओके, आप प्रैक्टिस करो एटलीस्ट, जो अगर यस कुछ यस। एरर भी आता है आपको तो फिर कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कहीं पे आपको यस सर। नहीं जम रहा है, कुछ हार्ड आ रहा है, नहीं क्या? थोड़ा सा सर स्क्रीन का नेविगेशन जो है ना, लाइक अलग अलग जा रहे हैं, उसी में बस प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो बाकी अंडरस्टैंड